Hello friends, welcome back to the series of lectures. This is the second lecture of this series of CPC. So in the previous lecture we had seen what are the topics we have to study for the judiciary. In this lecture we would start with the topics. Now first of all you see when we are talking about the CPC, what is the role of CPC? And there I been talking about the cause of action. अब देखो आपके पास कुछ substantive legal rights होते हैं. You are having some substantive legal rights. आपका लॉ ऑफ टॉर्ट में राइट है, कॉन्ट्रैक्ट में राइट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. You are going to school, colleges, you are having the contractual rights. The teachers are legally bound to teach you. You are having the legal right to go to the college and to be taught. So you are having the substantive legal right, and whenever you are having the substantive legal right, there is a remedy provided for that. If you appreciate that, if a contractual right is violated in a law of contract, then what remedy do you have? You can go for damages, and if you go for a specific relief act, then it is specific performance. You can take injunction also. So you are having certain remedies provided by the law. So first of all, the law creates the right for you. Law creates the right for you, and law also create the remedies for you. आपने एक मैगज़ीन पढ़ा होगा, उबिजा सिवी रेमिडियम, टॉर्ट का एसेंशियल मैगज़ीन उबिजा सिवी रेमिडियम, टॉर्ट का जूरिस्प्रूडेंशियल essence is obvious sibi remedium. The meaning of this maxim is when there is a right, there is a remedy. When there is a right, there is a remedy. Now suppose you are going to college and you are having a substantive legal right to go to the college and sit into the class. तो ये जो contractual right है आपका क्लास में बैठने का, that is a substantive legal right that is created in your favor. So that is substantive legal right. अब अगर उसका वायलेशन हो जाता है, so the violation has to be rectified. Otherwise, the maximum obija sibi remedium will fail. So whenever you have got a legal right, the maximum obija sibi remedium suggests that there has to be a remedy. अगर remedy नहीं है, means that right was imperfect right, and that was not a good right. क्योंकि जब right की remedy नहीं है, तो right का फायदा क्या होगा? अब that remedy is provided to you by substantive law. Means your contractual right to being in the classroom is your legal right which you are created by taking the admissions and depositing the fees and all. Now thereafter, suppose your legal right was violated. Suppose you are not allowed to enter into the classroom or college. अगर आपका कोई fault नहीं था normal course में, you are not allowed. Then you always have a remedy. अगर remedy नहीं है, then you are having imperfect right. So you cannot say that it is the imperfect right accepting the time bar and all. Now, therefore, your right is perfect. You are having a perfect right. Then you have to be given a remedy. Remedy of either a specific performance or of compensation. तो वो जो आपके पास legal remedy है आपके right के violation पर, the obija sibi remedium requires that the substantive law should also providing the legal remedy. My point is the right is created by the substantive law, and remedies is also created by the substantive law. Why? Because this maxim obija sibi remedium has to be satisfied, and obviously the natural justice requires that there has to be remedy. But the point is, क्या सिर्फ रेमेडी देने से आपका ओबिजा सिबी रेमेडियम सेटिस्फाई होगा या फिर और कुछ भी करना पड़ेगा? Because it is not only of giving of the remedy, it is not only of getting of the remedy, it is also of the process of obtainment of that remedy. That is also very important. अब आपने कह दिया मुझको कि डैमेजेस मिलेंगे, लेकिन आपने मुझको अगर ये नहीं बताया कि डैमेजेस में क्लेम कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किस कोर्ट में जाऊँगा, क्या प्रोसेस होगा, means that remedy is incomplete, and therefore that CPC plays there a complementary role.
CPC provide us that procedure. CPC provide that procedure by which you can effectively obtain that relief which has been provided by the substantive law. Therefore, when you say ubi jus ibi remedium, the ubi jus ibi remedium does not mean only of the providing of the remedy by the substantive law. Ubi jus ibi remedium also include the providing of the procedure for obtainment of that remedy. And therefore जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 73 कहता है कि आप कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस ले सकते हो, या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो, सेक्शन 10 में कहता है शायद स्पेशल रिलीफ एक्ट में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो, तो उसके लिए आपको सीपीसी पढ़ना होगा, क्योंकि सीपीसी आपको उसी बात के लिए प्रोसीड्योर प्रोवाइड कराता है कि आप कैसे अपना रेमेडी एनफोर्स कर सकते हो. And therefore CPC is read along with the limitation etc. all the procedure law that plays the complementary role to complete the requirement of principle of ubi jus ibi remedium. You write down upon it. Any legal right provided by substantive law is incomplete unless the remedy in the case of violation also has been provided. The maxim ubi jus ibi remedium requires that in case of violation of the substantive right, there has to be a legal remedy provided by the substantive law. There has to be a legal remedy provided by the substantive law, comma, however, the mere provision for legal remedy would not be sufficient, and the maxim would fail if an effective procedure for obtainment of remedy is not provided. CPC plays the complementary role to fulfill the requirements of the maxim by providing the effective mechanism for obtainment of the relief or remedy. CPC plays complementary role to fulfill the requirement of the maxim ubi jus ibi remedium. To fulfill the requirement of the maxim ubi jus ibi remedium by providing the effective mechanism for obtainment of the relief लिख लो या remedy लिख लो. So have you understood what I've said? What I am trying to tell you is कि आपके पास right है substantive law में, contract हो, tort हो, family law हो, whatever, तो आपके पास right है substantive law में. तो जैसे family law की बात कर लो, husband wife साथ रहते हैं and wife has left the husband. Now if husband wants to stay with the wife, then the husband will file the suit for restoration of conjugal rights. So the substantive legal rights are provided to the husband and wife both. That is, right to cohabit and the right to make the other cohabit oneself. So that is the substantive right, and the remedy provided is the restitution of the conjugal rights. So you are provided the restitution of conjugal rights in section 9 of the Hindu Marriage Act. अब सेक्शन 9 में आपका रेस्टिट्यूशन का राइट दे दिया है, तो वो तो रिलीफ हो गया, आपका रेमेडी हो गया. तो क्या सिर्फ आपका इससे काम चल जाएगा कि आपको रेमेडी दे दिया, आपको प्रोसेस दिया ही नहीं है, तो फिर उबी जैसे भी रेमेडियम इसमें फुलफिल कहाँ होगा. सो अनलेस यू आर प्रोवाइडेड द मैकेनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग द रिलीफ, हाउ विल द मैक्सिम विल फुलफिल, and therefore CPC plays a role of providing that mechanism and complementing the obtainment of that particular relief and fulfilling the purpose of providing that particular relief. ठीक? So that is what I am trying to tell you in the initial discussion. अब दूसरा point, the second point I make to discuss with you is what is meant by cause of action. What is cause of action? अब देखिए, आपके पास लीगल राइट है, सब्सटेंटिव लीगल राइट. फॉर एग्जांपल, यू आर हैविंग द राइट टू सिट इन दिस क्लासरूम.
and I have violated that legal right. At the moment I violated that legal right, it gives you that cause of action. देखो रेमेडी की बात अभी नहीं आएगी, कॉज ऑफ एक्शन की वजह से रेमेडी मिलेगा आपको, लेकिन रेमेडी कॉज ऑफ एक्शन का पार्ट नहीं है। रेमेडी इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स व्हाट? कॉज ऑफ ब्रिंगिंग लीगल एक्शन, कॉज ऑफ ब्रिंगिंग लीगल एक्शन, कॉज ऑफ फाइलिंग सूट। तो आपके पास मेरे खिलाफ कॉज ऑफ फाइलिंग सूट कब होगा? जब आप ये प्रूव कर दो कि आपके पास राइट टू सिट इन दिस क्लासरूम है, और दूसरा ये प्रूव कर दो आई हैव डिनाइड दैट राइट टू यू। बेसिकली cause of action in any case related to any substantive law that consists of two things. One is the existence of the legal right in the person and the violation of these legal rights. उसकी वजह से you can go for claiming the relief. So remedy is not a part of cause of action. Remedy is the consequence of cause of action. So remedy is not a part of cause of action. It is the consequence of cause of action. आप कोर्ट में जाओ, प्रूफ करो, कोर्ट में जाओ, सूट करो, देन कोर्ट में प्रूफ करो कि मेरा ये लीगल राइट है, और साथ में ये भी प्रूव करो कि उसने मेरा लीगल राइट वायलेट किया। और एक बार जब आपने ये दोनों प्रूव कर दिया तो आपका कॉज ऑफ एक्शन प्रूफ हो गया, तब आपको जो भी रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ आपको मिल जाएगा। सो टेक्निकली रेमेडी इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो इसको भी लिख लीजिएगा आप, राइट। एनी लीगल राइट ब्रैकेट में लिखिए पर्सनल और प्रोप्राइटरी, एनी लीगल राइट पर्सनल और प्रोप्राइटरी एग्जिस्टिंग इन अ पर्सन and the violation of that legal right together constitutes the cause of action of a person. That is, they together give him a right to file a civil suit. ठीक, so ये ध्यान रखिएगा whenever talks about the cause of action, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ राइट अपने आप में cause of action नहीं है, वायलेशन जरूरी है। और जैसे आपका राइट है क्लासरूम में बैठने का, वो आपका cause of action नहीं है। Right alone cannot constitute the cause of action. Cause of action means what? Right to file a civil suit. Right to file civil suit तभी होगा जब your right has been violated. Unless your right is violated, there is no right to file the civil suit. So therefore, first you have to prove that there is legal right and there is a violation of my legal right. So I have the right to file a civil suit. अब देखिए किसी डिवोर्स पिटीशन में जब आप डिवोर्स फाइल करते हो, what will be the cause of action? So there are certain grounds which are given for getting the divorce. One out of them is cruelty also. तो concealment of facts भी हो सकता है, जो शादी के समय कुछ ऐसा छुपाया गया हो फैक्ट जिससे जो आपके कंसेंट को अफेक्ट करता। तो there are several grounds. One is cruelty out of them. अब देखिए cause of action क्या रहेगा इसमें? In the case of divorce, cause of action is right of the husband or wife, whatever, whoever, that cruel conduct should not be done. When we are talking about the cruelty, the cruel conduct should not be done by the respondent to the petitioner, and the violation of that right by doing of that cruel conduct by the respondent against the petitioner. तो आपको डिस्टिंक्टली ऐसे बताना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा आप लिख दो कि क्रुअल्टी इज द ग्राउंड, पूरा बताना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है। आप बताओगे दैट राइट द क्रूअल कंडक्ट शुड नॉट बी डन एंड द वायलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लीगल राइट। और उसी तरीके से और भी कोई एग्जाम्पल आप सोच लो, फॉर एग्जाम्पल न्यूसेंस इन टॉट। अब मान लो हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं एंड सम अदर पर्सन स्टार्टेड क्रिएटिंग नॉइस, देन व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन फॉर मी, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ एक्शन फॉर मी? अब पहले राइट बताओ उसमें। We are having the right to peaceful enjoyment of the property. I am having the right because this premises is my, whether if I am a owner, if I am a tenant, then also I am having the right to enjoy the peaceful premises. I have the right to peacefully enjoy the premises. So then you will say, if there is a violation of my right by the other party by creating that noise, तो आपको जब भी कॉज ऑफ एक्शन बताना हो तो आप सबसे पहले हमेशा अपना राइट ढूंढो, व्हाट इज योर राइट।
फिर बताओ नंबर 1 ये राइट है और नंबर 2 ये मेरा वायलेशन है। तो आप जो ट्रायल में एविडेंसेस दोगे तो बेसिकली इसी के लिए दोगे, आप काउज ऑफ एक्शन प्रूव करने के लिए दोगे। और काउज ऑफ एक्शन आप कैसे प्रूव करोगे? दैट दिस इज माय राइट एंड दिस हैज बीन वायलेटेड। तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों। तो जब भी काउज ऑफ एक्शन लिखोगे आपको दोनों को लिखना पड़ेगा और दोनों को डिस्टिंक्टली प्रूव भी करना पड़ेगा। अब हो सकता है मुझको राइट तो है, राइट टू एंजॉय माई प्रोमाइसेस, बट जो नॉइस है किसी ने अगर क्रिएट किया दैट इज ऑफ वेरी रीजनेबल लिमिट। कोई काम चल रहा है साइड में या फिर कोई नेसेसरी कंडीशन है, सो इन दैट कंडीशन आई हैव टू बियर दोज नॉइस। जो कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर कोई नेसेसरी थिंग है तो वी कैन नॉट कंप्लेंट अबाउट दैट, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन नॉट स्टॉप, दीज आर नेसेसरी थिंग्स। अब कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है तो हवा में जाकर नहीं करवा सकता, सो वी कैन नॉट कंप्लेंट अबाउट दैट। अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो जब तक we cannot complain of that. So sometimes law expect from me to bear such minor problems, and therefore you cannot say outrightly that on minor problems that one has violated my right. So I am not having a cause of action in that case. तो मुझे दोनों चीज लिखनी पड़ेंगी और प्रूव करना पड़ेगा। My right and what was the right, what is my right and what is the violation. So write down upon it. Cause of action is the bundle of facts which enables a party to obtain relief through some judicial proceedings. It consists of the legal right existing in the party concerned and the fact that the right has been violated. The plaintiff, petitioner, or the applicant has to allege the existence of cause of action in him. It consists of legal right existing in the party concerned and the facts that the right has been violated. तो एग्जिस्टिंग राइट होना चाहिए एंड द फैक्ट एक उस राइट का वायलेशन होना चाहिए। द प्लेंटिफ पिटिशनर और द एप्लीकेंट हैज टू एलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन हिम एंड थ्रू द सूट एंड प्रोसीडिंग्स he has to prove such cause of action whereupon he will get the relief claimed by him. You see that the existence of the legal right. Suppose in A there is a legal right in A and it is violated by the B. It is violated by B. This will give rise to cause of action to him. Cause of action means what? It is the reason for filing the suit. It is the cause for filing the suit. So he gets the right to file the suit and then he will go to the court. Now it is here the CPC starts. The moment you go to the court, from there the procedure will start. The procedure में अब अगर आप देखो what will happen? Procedure में अगर आप देखो the first of all, the first is that draft its plaint or it can be a petition. In certain laws the term used is petition. For example, in the Hindu Marriage Act the term used is not the plaint, it is the petition, but generally the term used is plaint. But in certain cases like in arbitration or Indian Succession Act, the word application is used. But it is one and the same thing. That original document on the basis of which you go to the court. That original document can be in the form of the plaint or a petition or an application as required in the Indian Succession Act. I am not saying Hindu succession, I am saying Indian Succession Act. Or in the case of arbitration, the word used is application. So first of all he goes to the filing counter of the court. So the petitioner or plaintiff first of all go to the filing counter. A petitioner, plaintiff या applicant on the filing counter, and at the filing counter, on counter it file into two original copies. दोनों ओरिजिनल कॉपी होंगे और वहाँ पर उसको एक स्लिप मिल जाएगा। फिर वहाँ पर उसको एक स्लिप मिल जाएगा. The slip is not the suit number, it is of the declaration of the fact, the acknowledgement of the fact that you have filed the plaint. Then after that, depending upon at what time you have filed the plaint, either on the same day after 2 o'clock, there is a notice board where
it would be specified that your suit has been presented before, or you have to appear before such and such court at on so and so date at so and so time. अब उसके बाद the plaintiff will appear before the specified court at the specified date and time. Now when he appears there, that is not for the purpose of hearing. The first purpose is the court will examine as to whether the plaint has been properly filed or not, and for that purpose the court will examine the documents, whether the documents have been properly annexed or not, plus the xeroxing जो xeroxing में photocopy was not clear जो आप लगाते हो. So the court will see whether the documents attached and the pleadings in the plaint they are visible or not, मतलब पढ़े जा सकते हैं कि नहीं. Plus mainly the court will examine the court fees. तो एक्चुअली वो जब कोर्ट में प्रेजेंट होगा डॉक्यूमेंट, द कोर्ट विल पास एन ऑर्डर एंड दैट विल बी एन ओरल काइंड ऑफ ऑर्डर दैट इज कॉल्ड ऑफिस टू रिपोर्ट. उस ऑर्डर को माना जाता है ऑफिस टू रिपोर्ट. मीन्स द जज हैज पास्ड द ऑर्डर. जज हैज पास्ड द ऑर्डर माय ऑफिस टू रिपोर्ट रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड द कोर्ट फीस. जो उसका कोर्ट का रीडर होगा, रीडर विल एग्जामिन द डॉक्यूमेंट एंड कोर्ट फीस एंड देयर इटसेल्फ he will report to the judge concerned as to whether everything is in proper order or not. Suppose if the reader finds that some documents are not properly attached or they are not visible or maybe the court fees is deficient. ज़्यादा की कोर्ट फीस फाइल करनी चाहिए थी, मान लो 2 लाख की करनी थी और 20,000 की. तो इन such kind of cases he will raise the objections. तो ऑब्जेक्शंस में ये कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है या लेजिबल नहीं है या कोर्ट फीस कम है, तो उस तरीके के ऑब्जेक्शंस होंगे और उन ऑब्जेक्शंस का लिस्ट तैयार होगा. देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड दैट विल बी डन ऑन द सेम डे, फर्स्ट डे. देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑफ व्हिच द रीडर विल प्रिपेयर एंड प्रेजेंट बिफोर द जज. अब इस पर द जज विल पुट इट्स सिग्नेचर. लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस पर जज विल पुट इट्स सिग्नेचर एंड दैट इज कॉल्ड ऑफिस ऑब्जेक्शंस. ऑफिस ऑब्जेक्शंस मतलब ये टेक्निकल ऑब्जेक्शंस है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ पर्टिकुलर जज, फ्रॉम द कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जज. और ये सारी चीज़ सेम डे पे होगी, उसी दिन. और एक बार ऑफिस ऑब्जेक्शन पर जब जज ने साइन कर दिया तो उस दिन से आपको 7 डेज का टाइम मिलता है. Who will get the 7 days time? The plaintiff will get the 7 days time to make the rectifications. जो भी ऑब्जेक्शन है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए उसको 7 डेज मिलेंगे. और अगर कोर्ट फीस अगर कम लगा रखी है तो उसको डेफिसिट कोर्ट फीस है तो और कोर्ट फीस फाइल करो. डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर नहीं है डॉक्यूमेंट्स लगाओ. सो विद इन 7 डेज यू हैव टू मेक द करेक्शंस. अब 7 डेज में जिस दिन ऑफिस ऑर्डर वो साइन हो गए, ऑब्जेक्शंस वगैरह मिल गए, तो 7 डेज में अगर आपने करेक्शन नहीं किए देन योर प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड. बट यू कैन ऑलवेज सीक द टाइम फॉर एक्सटेंशन फ्रॉम द कोर्ट अपॉन द सफिशिएंट ग्राउंड्स. 7 डेज के बाद भी अगर आप करेक्शन करते हो तो कोर्ट में अलाउ यू दैट यू आर हैविंग सफिशिएंट ग्राउंड्स सो दैट एक्सटेंशन कैन बी गिवन बट नॉट टू मच. अब जब कोर्ट में आप अपीयर हुए थे पहले दिन यहाँ पर, तो उस कोर्ट से आपको सूट नंबर मिलता है. द सूट नंबर इज गिवन टू यू ऑन द फर्स्ट डेट फ्रॉम द कोर्ट. फाइलिंग काउंटर से आपको सूट नंबर नहीं मिलेगा. द सूट नंबर विल बी गिवन यू फ्रॉम द कोर्ट व्हेन यू अपीयर फ्रॉम द ऑन द फर्स्ट डे. और उसके बाद उस कोर्ट के रजिस्टर में आपका सूट नंबर लिख लिया जाएगा एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स. अब एक बार आपने 7 डेज के अंदर करेक्शंस कर दिए, एक बार आपने 7 डेज के अंदर करेक्शन कर दिए या फिर कोई एक्सटेंशन लिया तो उसके अंदर करेक्शन कर दिए. नाउ once the court finds that everything is in proper order, now the court will issue orders for the summons. तो सारा करेक्शन वगैरह हो गया तो then on that day court will issue the order for summons. Summons to whom? Summons to the defendants. लेकिन summons के ऑर्डर करने के बाद जब उसने summons पर साइन कर दिया, जज has signed the order on of summons, उसके बाद again you will get the period of 7 days within which you have to do 2 things. Number 1, you have to deposit the process fee. Process fee मतलब सम्मन का सर्व करने का जो खर्चा है, that you have to file in the court, in the registry of the court. So the amount that is specified
for the service of the summons that you have to file within the 7 days, प्लस जो ओरिजिनल कॉपीज कोर्ट में लगाई थी उनमें से एक कॉपी समन्स के साथ जाएगा, बट वो कॉपी एंडोर्समेंट करके कोर्ट में वापस आता है, और डिफेंडेंट को जो उसकी कॉपी करवाकर जो प्लेंटिफ उसकी कॉपी विद डॉक्यूमेंट्स ऑल कॉपीज देगा कोर्ट में, और डिफेंडेंट को आप द प्लेंटिफ देयर आफ्टर प्रिपेयर द प्लेंट ऑन द पीस ऑफ द प्लेन पेपर एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसकी कॉपीज उसको फिर से लगानी पड़ेगी। तो अब जो प्लेन पेपर पे डॉक्यूमेंट लगाएगा, प्लेंट बनाएगा, इट इज़ द सेम जो आपने ओरिजिनल फाइल किया, सेम टू सेम आपको प्लेन पेपर पे बनाना पड़ेगा। एंड और डिफेंडेंट्स को एक एक कॉपी, मान लो डिफेंडेंट एक है तो 1 copy on plain paper and the documents, the copies of the documents. Now that you have to submit in the 7 days, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी की एक कॉपी तो कोर्ट की फाइल में रहेगा हमेशा, और एक कॉपी सम्मन्स के साथ जाएगी। तो एक तो कोर्ट के रिकॉर्ड में रहेगी, कोर्ट फाइल में, एक दूसरी कॉपी है दैट विल गो टू द प्रोसेस सर्वर, ही विल टेक इट टू द डिफेंडेंट। तो अब ये ओरिजिनल जो कोर्ट से जाएगा और प्लस द प्लेन पेपर वाला प्लेंट that will be taken by the process server to the defendant, and the copy will be given plain paper वाला to the defendant along with the document, और उसके पीछे वो एंडोर्समेंट कर देगा, जो कोर्ट कॉपी रहेगी उसमें एंडोर्समेंट कर देगा कि इस तारीख को इतने बजे मैंने इस व्यक्ति को सम्मन सर्व किया है, और उस पर विटनेसेस के भी साइन ले लेगा दैट द सम्मन्स हैज बीन सर्व। अब ये कॉपी वापस कोर्ट में आ जाएगी, और एक ओरिजिनल कॉपी ऑलरेडी कोर्ट में है, तो दूसरे ओरिजिनल कॉपी पे सिग्नेचर करके इट विल गोइंग बैक टू द कोर्ट एंड दैट विल बी पुट इनटू द केस फाइल। लेकिन डिफेंडेंट को जो सर्व होगा दैट वुड बी अ प्लेंट यू हैव मेड अगेन ऑन अ पीस ऑफ प्लेन पेपर। उसके लिए दे विल बी गिविंग यू 7 days टाइम, फॉर दैट दे विल गिव यू 7 days टाइम। विद इन दिस 7 days फ्रॉम फर्स्ट डे you will file the process fee etc, and if you do not do that, again your plaint is liable to be rejected, but again the court can always give you the extension of time upon sufficient grounds। तो एक बार ऑब्जेक्शन होने के बाद उस फर्स्ट डे से के बाद काउंटिंग चालू होगी, फर्स्ट डे से 7 days की, उसके अंदर आपको सम्मन्स वगैरह देने पड़ेंगे। व्हाट इज द लॉजिक दैट कि 2 copies कोर्ट की होती हैं ऑन एंडोर्समेंट, एक कॉपी जो कोर्ट से जाएगी डिफेंडेंट कॉपी। अब जो डिफेंडेंट को कॉपी जाती है वो बेसिकली कॉपी होती है, जो 2 copies कोर्ट में होती हैं, एक प्लेंटिफ अपने पास रखता है तो उसी प्लेंट की कॉपी करा देता है प्लेंटिफ, और उसको ही डिफेंडेंट्स को, जितने भी डिफेंडेंट होंगे सबको सर्व करा देता है। एक प्रोसेस फी फॉर्म होता है, उस पर टिकट लगती है, उसके साथ डिफरेंट डिफेंडेंट्स को सेंड कर देता है, और एक एनवलप रेडी करेगा, जितने डिफेंडेंट होंगे उन पर टिकट्स लगेंगी, स्पीड पोस्ट या जो भी है, एक फॉर्म फिल किया जाएगा और उनकी कॉपी लग जाएगी। तो जो मेन पर्पस होता है, जो कोर्ट में 2 copies जाती हैं उसमें से एक कॉपी जाएगी अलॉन्ग विद दैट, कि अगर किसी डिफेंडेंट को चेक करना है कि वेदर द कॉपी सर्व टू मी इज कंप्लीट और नॉट, तो अब कोर्ट में जो 2 copies होंगी वो चेक करेगा रीडर कि भाई सेम कॉपीज है कि नहीं, जिस ग्राउंड पे, जिन डॉक्यूमेंट्स पे या फिर जो प्लेंट के स्टेटमेंट है जो भी जिस पर वो केस लड़ रहा है, तो उधर कोर्ट में कंप्लीट होंगी वो चीज, सारा प्लेंट या डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें से एक कॉपी जाएगी, तो जिससे टैली कर सकते डिफेंडेंट्स कि वेदर देयर कॉपी इज ऑल्सो कंप्लीट और नॉट, दैट इज वन पर्पज। अब उसके बाद वंस द प्रोसेस फी एक्सेट्रा इज फाइल्ड, the document has been filed, then after that, then from the registry of the court the summons will be issued, और summons issue करने के बहुत सारे तरीके होंगे, इट कैन बी सेंड बाय ईमेल ऑल्सो, तो वहाँ पर तो एक ही कॉपी जाएगी, फिर इट कैन बी सेंड बाय फैक्स ऑल्सो, तो फैक्स में तो फिर जो आपने भेजा वही जाएगा, फिर 2 कॉपी की जरूरत नहीं है। देन इट कैन बी सेंड बाय कुरियर ऑल्सो, इट कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा। तो अगर वैसे केसेस हैं, अब जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट है तो उसमें एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाएगा, सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से भेजा है, तो उसमें कॉपी भेजने की ज़रूरत है कि नहीं, दैट इज डिपेंड अपॉन द मोड्स ऑफ सर्विस
It can be sent through process server also. Process server को प्यादा बोलते हैं आप हिंदी में. And there is a process service department in every court. हर कोर्ट का अपना प्रोसेस सर्विस डिपार्टमेंट होगा, वो रजिस्ट्री के साथ जुड़ा होगा और वहाँ से द प्रोसेस सर्विस विल गोइंग टू सर्व द समन्स. और उसका अलग चैप्टर है, दैट इज ऑर्डर 5 दैट यू हैव टू सी ऑन समन्स. अब सपोज द समन्स वर इशूड टू द डिफेंडेंट फ्रॉम द कोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे और जज ने साइन कर दिया उस पर. अब हियर वी विल कॉल जज नॉट मजिस्ट्रेट बिकॉज मजिस्ट्रेट वी विल कॉल इन क्रिमिनल मैटर्स. तो जज ने साइन कर दिया उस पर. साइन करने का मतलब उधर जो स्टैम्प वगैरह लग कर जाती है कोर्ट से, तो विद इन 7 days में समन इशू होने के बाद निकल गया. अब एक ऑन ए पर्टिकुलर डेट द समन्स वर रिसीव्ड बाय द डिफेंडेंट, so it would be called the summons were served to the defendant. Now once the summons are served on that day, within 30 days from the date of the serving of the summons, जिस दिन सम्मन मिला है डिफेंडेंट को उस दिन से 30 दिनों के अंदर the defendant has to file the reply to the plaint. That is what is called the written statement, and the period of 30 days can always be extended. The period of 30 days can always be extended on sufficient grounds up to a period of maximum 90 days, and beyond 90 days in certain cases it can be allowed, but normally आपको 90 days का extension मिलता है. लेकिन extension की हम बात ना करें तो मान लो आपने 30 days में written statement फाइल कर दिया, या फिर मानो extended period के अंदर आपने written statement फाइल कर दिया. अब क्या है, कोर्ट के सामने प्लेंट भी है, प्लेंटिफ के सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट भी है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं. अब समन्स में जब जाता है तो समन्स में रिटन स्टेटमेंट का डेट नहीं लिखा जाता. समन्स में लिखा जाता है कि आपको हियरिंग के लिए इतने तारीख को अपीयर होना है, और जो आपका अपीयरेंस का डे होगा वो हमेशा ज़्यादातर रिटन स्टेटमेंट के टाइम पीरियड के बाद का डेट होता है, क्योंकि जल्दी देने का फ़ायदा नहीं है. मान लो समन्स में लिख दिया 2 दिन के बाद अपीयर हो जाओ, अब 2 दिन के बाद अपीयर होकर करोगे क्या, जब रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो आप अपीयर होकर कोर्ट में पर्पस तो फुलफिल नहीं होगा. देयरफॉर द अपीयरेंस का डेट हमेशा इतना दिया जाएगा कि उसके अंदर रिटन स्टेटमेंट का पीरियड कवर हो जाए. तो 2 महीने 1.5 महीने कम से कम 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा. कई बार 90 दिन के बाद का भी टाइम दे देते हैं. तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड ऑफ कोर्ट ऑल्सो. अब उसके बाद रिटन स्टेटमेंट फाइल हो गया. अब उसके बाद द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ विल अपीयर. अब वो दोनों के अपीयरेंस का फर्स्ट डे होगा. अब सिंस इट इज़ अ सिविल मैटर इट इज़ नॉट नेसेसरी that the plaintiff and the defendant should appear in person. They could appear through their lawyers or agents. अब that is related to order 10. order 9 relates to अगर फर्स्ट डे आप नहीं आते हो तो क्या होगा, तो वो सारी चीज़ तो आप डिटेल में पढ़ोगे. अब इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अगर फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग पे नहीं आता है डिफेंडेंट, नहीं आता और अपना WSB फाइल नहीं किया. मे बी इट इज डिपेंड अपॉन द कोर्ट कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दे या नेक्स्ट डेट दे दे दैट वी वुड इनिशिएट द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द नेक्स्ट डेट. बट लेट्स presume a normal situation that on the first date of hearing both the parties are present. Then the court will examine the plaintiff and the defendant orally, and thereafter, if you remember, I told you the court will examine them and examine the document, and then court will go for what? After examining the document, court will go for ADR. So issue framing, court will go for issue framing. और issue framing सेम डेट में तो होगा नहीं, issue framing सेम डेट पे होगा नहीं, तो उसके बाद एक नेक्स्ट डेट लगेगा उस पर issue framing होगा. अब उसके बीच में issue framing के पहले the court will examine whether ADR is possible or not. अब if ADR is possible, then the court will formulate some questions for ADR and send the matter to the concerned body. चाहे लोक अदालत हो, मीडिएशन हो, आर्बिट्रेशन हो, कंसिलिएशन के लिए भेज दिया, so that the court will be doing. But if it is not possible, if the court finds that is not possible, that ADR is not possible, then the court will recall
द मैटर एंड गो फॉर इशू फ्रेमिंग। या फिर मीडिएशन वगैरह में गया, मीडिएशन फेल हो गई, कंसिलिएशन फेल हो गई, देन द मैटर विल सेंड फ्रॉम देयर टू द कोर्ट। अब ये इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। सो कोई भी एक नेक्स्ट डेट होती है उससे पहले कोर्ट रेफर कर देता है कंसिलिएशन मीडिएशन वगैरह में, एंड उसमें बीच में फ्रॉम द कोर्ट डेट से पहले बीच में डेट लगती रहती है लगातार, सो ऑफ मीडिएशन वगैरह। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इट कुड बी पॉसिबल, तो कुछ नेगोशिएशंस रह गई हैं, तो जो कोर्ट की डेट है उसके बाद फर्दर एक्सटेंड हो सकती है ऑन रिक्वेस्ट। इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी देन ऑन द it would be mentioned on the court date that it is filled. So ये all process, this all is not so simple. अब हो सकता है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोर्ट ने एग्जामिनेशन किया एक पार्टी का और दूसरी पार्टी ठीक से जवाब नहीं दे पा रही, दूसरी पार्टी का एजेंट आया, खुद पार्टी नहीं आई है, कुछ क्वेश्चंस पार्टी से पूछना है, तो कोर्ट उसमें एक डेट लगा देगी कि इस डेट को पार्टी को खुद अपीयर होना पड़ेगा, तो उसमें डिले हो सकता है। या फिर डिफेंडेंट कह सकता है, सॉरी प्लेंटिफ कह सकता है कि मुझे डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट के जवाब में रेप्लिकेशन फाइल करना है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, तो कोर्ट रेप्लिकेशन फाइल करने के लिए टाइम देगा और रेप्लिकेशन ड्राफ्ट करके इस बीच में फाइल होगी। अब रेप्लिकेशन फाइल करके जिस दिन आपको डेट मिला तो उस दिन डिफेंडेंट कह सकता है कि मुझे रिजेंडर फाइल करना, मुझे डेट चाहिए, एंड सो फोर्थ। सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन बिटवीन and that will be delaying in the process, but I am talking about an ideal situation. Now after the issue framing, the court will frame the issues between the parties as to part plaintiff ने क्या कहा और defendant ने क्या कहा, तो जिन points पर all those points on the defendant had either expressly or impliedly denied the pleadings of the plaintiff, on that it will be an issue। और जहाँ जहाँ डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया ऑन द प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंट, उस पर इशू फ्रेम नहीं होगा। अब मान लो प्लेंटिफ ने कहा देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड डिफेंडेंट, एंड इन द रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट सेज यस दैट देयर दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन। अब इस फैक्ट पर इशू फ्रेम नहीं होगा बिकॉज द डिफेंडेंट एडमिटेड दैट टू। इशू फ्रेम का मतलब है कि पार्टी को एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा, और जब अगर डिफेंडेंट खुद ही एडमिट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, देन व्हाई शुड द कोर्ट इशू फ्रेम द इशू ऑन दैट फैक्ट। सो ऑल दोज फैक्ट, अब सपोज प्लेंटिफ ने कहा देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंडेंट कहा यस देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे प्लेंटिफ ने कहा दैट आई हैव गॉट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टुडे, अब डिफेंडेंट फ्रॉम देयर डिनाइज, ही सेज दैट देयर इज नो ऑफर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, rather the plaintiff has committed a breach of contract. Now here the issue will frame as to whether there is a tender of performance of by the plaintiff. As to whether there is tender, as to whether there is a tender of, there was a tender of performance by plaintiff, तो इधर इसका बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा किस पर, प्लेंटिफ पर। तो ये सारी डिटेल्स तो हमको आगे पढ़नी है। Now that is how the issues are framed. अब after the framing of issues is what? अब जितने भी issues हैं उस पर one by one the evidence of the plaintiff will be recorded, and after the evidence which is given by the plaintiff are recorded and cross examination done by the defendant. After cross examination etc. After doing all that, then the turn of defendant came, and the defendant will record his evidences. तो दैट इज ऑल नॉर्मल प्रोसेस, उस तरीके से ट्रायल होगा। तो एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग ऑफ बोथ पार्टीज। फिर दोनों के एविडेंसेस क्लोज होने के बाद देन कोर्ट विल अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द एविडेंसेस ऑफ बोथ पार्टीज, एंड कोर्ट विल पास द जजमेंट। अब जजमेंट पास हो गया, जजमेंट पास होने के 15 दिन या 30 दिन के अंदर या उसके बियॉन्ड आपको उसी जजमेंट पर डिक्री मिल जाएगी। अब जजमेंट किसके फेवर में है, मान लो ए के फेवर में है, ए इज प्लेंटिफ के फेवर में, प्लेंटिफ को मान लो डिक्री मिल गई। अब इस डिक्री की कॉपी को लेकर डिफेंडेंट चाहे तो अपील में चला जाए, फिर उसके बाद अपील का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब अपील के बाद टाइम लगा तो अपील के बाद हो सकता है सेकंड अपील में चले जाओ,
अपील डिसाइड, फर्स्ट अपील डिसाइड होने के बाद, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तरफ तो डिक्री मिलने के बाद अपील का प्रोसेस शुरू होगा, और दूसरी तरफ जो डिक्री थी उससे रिलेटेड एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। हो सकता है अपील पेंडिंग है तो उसके इसमें कोर्ट एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दे, तो हो सकता है कोर्ट एग्जीक्यूशन को स्टे करके अपील के प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करे। और अगर एग्जीक्यूशन करवा दिया तो रेस्टिट्यूशन की सिक्योरिटी लेकर अपील में डिसीजन का वेट किया जाएगा। सो इट डिपेंड्स, नॉट नेसेसरी कि एग्जीक्यूशन हो ही जाए। अगर अपील में चले गए हो तो एग्जीक्यूशन को रोका भी जा सकता है। अब अपील में अगर आप चले गए हो तो उसमें जाकर अगर जजमेंट रिवर्स हो जाए फिर क्या होगा? रेस्टिट्यूशन मीन्स व्हाट आई एम saying is this is the broad civil procedure. What happen is civil procedures में there are so many small things. So there are so many small things, जैसे मानो ट्रायल के दौरान कोर्ट विल पास several kinds of orders. तो मान लो ट्रायल के दौरान डिफेंडेंट मर गया, ट्रायल के दौरान द डिफेंडेंट डाइज, अब द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल representatives LRs of the defendants are required. If legal representative of the defendants are not substituted on time, then the suit will abate. Order 22. अब similarly suppose a plaintiff is minor. अब suppose minor ने बिना किसी next friend के सूट फाइल कर दिया, अब वकील साहब ने किया तो उन पर कॉस्ट लगा दिया जा सकता है कि मान लो माइनर तो नहीं जानती थी बट तुमने बिना नेक्स्ट फ्रेंड के सूट केस फाइल कर दिया, सो एडवोकेट हैज टू एंश्योर दैट देयर इज ए नेक्स्ट फ्रेंड इन केस ऑफ ए माइनर। तो फिर नेक्स्ट फ्रेंड का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो आई एम टेलिंग यू दैट द वेयर द कॉम्प्लिकेशन कैन बी देयर इन नॉर्मल प्रोसीडिंग, सम एग्जांपल आई एम टेकिंग। अब सिमिलरली प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट एंड डिफेंडेंट इज माइनर, अब उसके गार्जियन को आपने इन्वॉल्व नहीं किया, देन द कोर्ट विल गो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्जियन ऑफ द डिफेंडेंट, और उसको जो भी ज्वाइन करना है फिर उसके बाद दैट सूट विल कंटिन्यू। अब सिमिलरली प्लेंटिफ इज एन इंडिजेंट पर्सन, सूट तो फाइल कर दिया पर कोर्ट फीस फाइल नहीं की उसने, तो उस केस में सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक ही डज नॉट प्रूव दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन। वंस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही इज एन इंडिजेंट, then he will be allowed to continue the suit without the court fees and the proceedings will start. तो वहाँ पर भी कुछ महीने लग जाएंगे in proving the indigency of the plaintiff. So like this there are so many situations happened in between. अब जैसे ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बीच में कोर्ट में प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन डाल दिया दैट आई वांट टू विड्रॉ माय सूट, so plaintiff can do that, the suit can be withdrawn. Or suppose plaintiff and defendant may enter into an agreement, and as per the written agreement of the compromise, the court may pass a decree, consent decree, and which will not be appealable. So in like that, in that way there are so many proceedings in between. जितने भी चैप्टर्स देखें उसमें से कुछ भी आ सकता है इन बिटवीन ऑफ ट्रायल। अब मान लो किसी पर्टिकुलर डेट पे सूट फाइल हो गया, ऑफिस ऑब्जेक्शन वगैरह सारी चीज़ हो गई, ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑब्जेक्शन वगैरह सारा हो गया। अब मान लो देयर इज सूट, दैट सूट इज रिलेटेड टू न्यूसेंस एंड दैट सूट इज फॉर डैमेजेस एंड अगेंस्ट द इंजंक्शन दैट इज न्यूसेंस दैट इज कॉल्ड। अब ये न्यूसेंस कई डेज से कई मंथ से हो रहा है कंटिन्यूअसली। अब मान लो सूट फाइल कर दिया प्लेंटिफ ने, अब ये सूट भी कई महीनों और कई सालों तक चलेगा फॉर डिसीजन, फाइनल जजमेंट आने तक। इट विल टू ए several years or several months. So up to that time the plaintiff could not bear the nuisance which is going on continuously. तो इस वजह से प्लेंटिफ ने उसी सूट में साथ में एक टेम्परेरी इंजंक्शन का एप्लीकेशन भी लगा दिया। तो कोर्ट पहले टेम्परेरी इंजंक्शन पे सुनवाई करेगी वेदर द टेम्परेरी इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड और नॉट। और टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर करने के बाद द कोर्ट विल गो अहेड विद द नॉर्मल प्रोसीडिंग्स। व्हाट आई एम वांट टू टेल यू इज दैट in the previous lecture we had written several topics. अब वो टॉपिक्स कहाँ फिट होते हैं, कैसे फिट होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दीज इंटरवेंशंस इट वुड टेक ए लॉट ऑफ टाइम इन द सिविल प्रोसीडिंग्स। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, रिसीवर है, टेम्परेरी इंजंक्शन है, कॉम्प्रोमाइज है, तो जैसे मान लो एक मकान को लेकर डिस्प्यूट है, मकान डिफेंडेंट के कब्जे में है और प्लेंटिफ कब्जा चाहता है मकान को,
अब वो चाहे तो वो अब कोर्ट चाहे तो उस मकान को डिफेंडेंट से कब्जे से लेकर उसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट कर दे, और जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो जाए तो ये रिसीवर रहेगा उसका मकान का केयर टेकर, और जो भी मकान से इनकम होगा दैट विल बी डिपॉजिटेड इनटू द कोर्ट। अब सूट के डिसीजन में जिसके भी फेवर में जजमेंट जाएगा द एंटायर मनी विल बी गोइंग टू दैट पर्सन। सो इन दैट वे सो मेनी थिंग्स मे हैपन इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। सो दीज आर द इंडिविजुअल प्रोसीडिंग्स। अब जैसे टेम्परेरी इंजंक्शन है, टेम्परेरी इंजंक्शन पे कोई इंडिविजुअल जजमेंट नहीं होगा, दैट विल बी एन ऑर्डर। अबेटमेंट के लिए इट विल बी एन ऑर्डर। अब मान लो आपने प्लेंट फाइल किया है, सूट शुरू हो गया और बीच में प्लेंटिफ को लगता है कि मुझे प्लीडिंग्स में कुछ ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, देन द प्लेंटिफ विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अब कोर्ट ट्रायल रोककर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स पे हियर करेगा एज टू वेदर amendment of pleading at this stage of proceeding shall be permitted or not, and if the court allows the amendment of pleading, then the court will pass an order of amendment of pleadings, and as per the order the plaintiff can amend the pleadings. So there are several orders which are passed during the continuation of the suit, and at the end of the suit the judgment will be passed. अब जैसे कोर्ट ने आपको डिसाइड कर दिया दैट यू आर इंडिजेंट, सो दैट डिक्लेरेशन दैट यू आर इंडिजेंट दैट इज एन ऑर्डर, सो दैट विल बी एन ऑर्डर। So during the continuancy of the suit there are several kinds of orders, then in the end of the suit there will be a judgment, and thereafter the decree is passed by the court in pursuance of the judgment. Then there can be appeal thereafter, there can be execution thereafter, or there can be both thereafter, or there can be stay upon the execution, there can be stay upon execution and only appeal is going on, and there can be execution as well as appeal, and later on it require restitution, or the party may not prefer to go into appeal। अगर पार्टी अपील में नहीं जाता तो उसके बाद क्या होगा, तो जिसके पास डिक्री है वो एग्जीक्यूशन करवाएगा, तो फिर एग्जीक्यूशन की कहानी अलग से शुरू हो जाती है। एग्जीक्यूशन कौन करवा सकता है, कहाँ करवा सकता है, ऑल दैट। सो इन डिस्कशन से मैं आपको थोड़ा फैमिलियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द सीपीसी, आई एम मेकिंग सम creating some interest. So this is the sequence broadly in which we do the proceedings or go on the proceeding. So अगर in brief smallest thing what we can draw is, first of all the plaint is filed, then after the plaint summons, then after the summons there will be written statement, then after the written statement there will be first hearing with respect to both the parties। फर्स्ट हियरिंग के बाद एडीआर इफ पॉसिबल। अब एडीआर में नहीं भेजा या फिर भेजा तो अनसक्सेसफुल हो जाए, देन इट इज इशूज टू फ्रेम। देन आफ्टर दैट देयर इज ट्रायल, टेकिंग ऑफ एविडेंसेस, देन ट्रायल के बाद टेकिंग ऑल एविडेंसेस इट विल बी जजमेंट, देन उसके बाद डिक्री, लिखा नहीं लिख लेना, डिक्री, देन देयर आफ्टर व्हेन यू हैव द डिक्री यू कैन गो फॉर एग्जीक्यूशन। At the same time there may be appeal or there may be a review also। अब अपील में there are अलग अलग अपील, अब फर्स्ट अपील, सेकंड अपील एक्सेट्रा। सो दिस इज व्हाट अब सीपीसी अबाउट। अब ट्रायल के दौरान जो कोर्ट ऑर्डर्स पास करती है अलग अलग इशूज पे, अब ऑर्डर्स के खिलाफ रिवीजन भी हो सकता है, और कोर्ट को अगर किसी लॉ पॉइंट पर डाउट हो तो ट्रायल के दौरान कोर्ट हाई कोर्ट में रेफरेंस भी दे सकता है। Upon a doubt during trial, the court can send to reference to the High Court. The court can send a matter, legal point, reference to the High Court in the course of trial, and the orders are passed against which the revision can be filed in the High Court, 115 of the CPC। तो ऑर्डर्स के खिलाफ रिवीजन भी हो सकता है, जजमेंट के खिलाफ उसको रिव्यू भी करवा सकते हो उसी कोर्ट से, जजमेंट के बाद रिव्यू भी करवा सकते हो उसी कोर्ट से, या फिर जजमेंट के बाद यू कैन गो फॉर अपील, एंड देन एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज देयर। सो दिस इज द ब्रॉडली थिंग्स व्हाट हैपेंस इनटू द
ट्रायल। अब इसी में छोटी छोटी चीज़ होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ आ जाएंगी। तो वेरी वेरी स्मॉल प्रोसीडिंग्स दैट विल फॉल इन दिस। तो जो आपने अलग अलग टॉपिक्स लिखे, दैट ऑल विल बी फिट इन दिस ओनली इन बिटवीन। अब जैसे मान लो ट्रायल के दौरान यू गो फॉर, और मे बी उसके पहले यू मे गो फॉर अमेंडमेंट, तो ऑर्डर 6 रूल 17 लग जाएगा वहाँ पर। अब मान लो एक व्यक्ति मर गया तो ऑर्डर 22 लग जाएगा वहाँ पर, एंड सो फोर्थ। So this is broadly about the sequence of the proceedings of the CPC. So in this we would start the proceedings one by one, but उसके पहले सबसे पहले jurisdiction देखना पड़ेगा, और उसके पहले कुछ initial topics which I have told you that we have to discuss, out of which the cause of action we have already discussed, and there are certain other terms are remain to be discussed, and we have to discuss them first. That we would discuss into the next lecture. That's it for this lecture. Thank you. We would continue the term with the term parties in the next lecture.